हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एकेडमी ऑफ सेंशिया। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। ओके, नाउ आवर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, reproductive health and population explosions. So these are our important points. Now come to our main content. So we start here from we have studied various life processes in various प्रीवियस क्लासेस। हमने लाइफ के जितने भी प्रोसेसेस होते हैं रिप्रोडक्शन के, सेक्सुअल और सेक्सुअल, बॉडी की इंफॉर्मेशन, सेल स्टडी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। नाउ ऑल दिस लाइफ प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सेंसेशन, रेस्पॉन्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ईटीसी। तो ये जो भी लाइफ के प्रोसेस होते हैं हमारे, इस लाइफ की एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए जो बॉडी प्रोसेस करती है उसमें आता है न्यूट्रिशन यानी टू टेक द फूड, रेस्पिरेशन मीन्स टू ब्रीथ, एक्सक्रीशन मीन्स टू रिमूव द waste material from our body, sensation to feel someone, and then response and control and coordination. So these all processes are coordinate to each other and balance the body, are essential to each living organism to remove a life. So beside these life processes, one more life process occur in living organism. तो इन सारी प्रोसेस के अलावा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक अलग प्रोसेस है जिसे हम कहेंगे रिप्रोडक्शन. Reproduction is a nothing but to birth the same individual or produce the same individual. However, reproduction does not help the organism to remain alive, but it helps to maintain the continuity of the species of that organisms. That means reproduction is not responsible for to alive for always, but the reproduction reproduces same type of species from one generation to another generation. For example, eggs, hen give eggs, egg from eggs, hen chicks, from chicks hen. So this is the life cycle. Okay, same as plants, from bees, plants from bees. So these are the processes. Now see here, formation of new organisms of same species by earlier existing organism is called reproduction. Whenever the new species come from existing organisms is called as the reproduction. Reproduction is one of the various important character of living organism. It is also one of the various reasons responsible for evolution of such species. So whenever the reproduction is done, it's from their old generation or from the existing organism, but on the basis of the environmental condition, evolution is a most important in a reproduction from each species. In living organism, reproduction occurs mainly by two methods. The method is asexual reproduction and the sexual reproduction. Okay, so first we studied about the asexual reproduction, process of formation of new organism by an organism of same species without involvement of a gametes. Gametes means that the female gametes and the male gametes, and we know about that the female gametes is like a egg, ovary, and the male gametes about the sperms. And when the male or female or gametes are fertilized, ovum is a form and new species is a form. But in a asexual reproduction, these gametes are not necessary. And the species form from a old species or existing organisms. So as this reproduction does not involve union of two different gametes, so asexual reproduction does not involve union of two different gametes. That means the two different gametes involve with each other and form a ovum or new species after fertilizations. So the new organism has exact genetic similarity with the reproducing
reproducing organisms. So there is a no union of two different gametes. So there is a no crossing over, no recombination, and because of that reasons in asexual reproduction the genetic similarity is the same to same. Genetic similarity is the same to same and produce the same organism. So this is a uniparental reproduction and it occurs by mitotic cell division. So because of that reason the gametes is not necessary, crossing over not occur, only uniparental, that means only one parent is necessary for asexual reproduction. There is no need of male and female gametes. So absence of genetic recombination is a drawback, whereas fast process is the advance of this reproductive method. So this is a drawback that recombination is not a cure. Now see here the examples of asexual reproduction. The first one is the binary fission. Fission means to break down. Whenever the one cell is break, they divided into the two cells. For example, there is an amoeba. It is a one amoeba, and when this amoeba goes into the fission process, there is a daughter amoeba, and finally two different amoebas are formed. So it is the fission process. Same as like in paramecium, it is a parent paramecium. Here is a form fission, breakdown, and the daughter parameciums, and new two parameciums are formed. Now see the activity of this. Take a conical flask and collect the water in it, form a pond having stagnant water. Stagnant water means कि रुका हुआ पानी, एंड एक्वाटिक प्लांट्स. आपको क्या करना है, एक कोनिकल फ्लास्क लेना है कांच का, उसके अंदर क्या करना है आपको, कलेक्ट द वाटर इन अ फॉर्म ऑफ पाउंड. कहाँ का पानी लेना है, पाउंड का, और स्टेगनेंट वाटर ठहरा हुआ पानी लेना है, एंड सम व्हीट ग्रेन्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स, और उसके अंदर हमें कुछ व्हीट के यानी कि गेहूं के दाने डालना है और कुछ एक्वेटिक प्लांट्स डालना है. कीप इट फॉर 3 to 4 days सो दैट व्हीट ग्रेन्स एंड प्लांट्स विल डिकम्पोज. After that we can see that the wheat grains and plants are starting to decompose. Early in the morning, 1/4 day, take a glass slide and put a drop of that water over carefully. उसके बाद इसको ऑब्जर्वेशन करने के लिए एक आपको क्या करना है, स्लाइड लेनी है किसकी, कांच की, और उसके ऊपर आपको जो आपका जो प्रिजर्व वाटर है उसका वो वाटर ऑब्जर्वेशन के लिए स्लाइड पे लेना है. पुट अ ड्रॉप ऑफ दैट वाटर ओवर केयरफुली, पुट अ कवर स्लिप. इसके ऊपर हमें क्या रख देना है, कवर स्लिप रखना है. कवर स्लिप क्या होता है, एक गोल कांच के जैसा पीस होता है जो हम स्लाइड पे रखते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए. एंड ऑब्जर्व अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और फिर हम इसे देखेंगे माइक्रोस्कोप में. अब ऑब्जर्वेशन के बाद हमको क्या मिलेगा, यू विल बी एबल टू सी मेनी पैरामेशियम परफॉर्मिंग द बाइनरी फिजन. तो उस वाटर के अंदर जो हमने प्रिजर्व करके रखा था पैरामेशियम का, हमको बाइनरी फिजन देखने को मिलेंगे. सेम एज लाइक प्रोकैरियोटिक्स बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, एंड यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अ बाइनरी फिजन. तो बाइनरी फिजन के यहाँ पे नंबर ऑफ एग्जांपल्स आर गिवन देयर फॉर अमीबिया, बैक्टीरिया, एंड यूग्लिना. So in this process the parent cell divide to form two similar daughter cell. So in a binary fission the parent cell is divided into a daughter cells. So binary fission occurs either by mitosis or a mitosis. और ये जो प्रोसेस होता है फिजन का, ये दो तरीके से होता है. फर्स्ट वन इज द माइटोसिस, सेकंड वन इज द अमाइटोसिस. तो एक्सिस ऑफ फिजन डिवीजन इज अ डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोटिस्ट. तो जो डिवीजन का प्रोसेस होता है उसका एक्सिस डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट हो सकता है. अमीबा डिवाइड इन एनी प्लांट ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप. अमीबा का अपना एक पर्टिकुलरली कोई शेप नहीं है, इस वजह से इसका जो अमीबा का एक्सिस होगा वो कहीं से भी होगा, यानी फ्रॉम एनी रीजन अमीबा कैन फिश ब्रेक डाउन. तो डिवाइडेड इनटू डॉटर सेल्स. सेम एज हैंस इट इज अ कॉल्ड एज अ सिंपल बाइनरी फिजन. तो इसलिए अमीबा का जो बाइनरी फिजन होगा वो सिंपल बाइनरी फिजन होगा. बट इन पैरामेशियम डिवाइड बाय ट्रांसफर बाइनरी फिजन. पैरामेशियम का एक अपना पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, इस वजह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्रांसफर होगा. इसका फिजन कैसा होगा, ये ट्रांसफर होगा. नाउ इन पैरामेशियम डिवाइड्स by transfer binary fission, whereas यूग्लिना by longitudinal binary fission, जबकि यूग्लिना का longitudinal binary fission है.
So binary fission is usually performed by living organism during favorable conditions, availability of abundant food material. तो binary fission कब होगा? whenever the living organism during favorable conditions, वो favorable conditions में हो, availability of abundant of food material हो. उसके बाद next one जो point है हमारा वो है क्या है? multiple fissions. So in a multiple fissions, see here process of a in multiple fission, asexual reproduction by multiple fission is performed by amoeba and other similar protist. ये जो multiple fission होता है ये किस में होता है? अमीबा में होता है और प्रोटिस्ट में होता है. अमीबा stop the formation of pseudopodia and thereby movement whenever there is lack of food or any other type of adverse condition. यानी कि कुछ adverse condition हो, critical condition हो और जिसकी वजह से वो formation of pseudopodia का formation नहीं कर पा रहे हो. It becomes rounded and form a protective covering around the plasma मेम्ब्रेन. तो वो अपने शेप को क्या कर लेते हैं? राउंडेड कर लेते हैं और अपने अतराफ में एक प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्म कर लेते हैं. हैंस सच इंसिस्टेड अमीबा और एनी अदर प्रोटिस्ट इज कॉल्ड सिस्ट. इसकी वजह से क्या होते हैं? सिस्ट फॉर्म होते हैं. नाउ मेनी न्यूक्लिया आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन इन द सिस्ट. जिसकी वजह से सिस्ट में मेनी न्यूक्लिया आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन. बार बार न्यूक्लियर डिवीजन होता है, यानी कि एक बार डिवीजन हो गया और 2 डॉटर सेल्स रेडी हो गए, ऐसा नहीं होता है. कवरिंग फॉर्म होने की वजह से न्यूक्लियर डिवीजन कंटिन्यूसली होता है, मल्टीपल टाइम्स होता है. सो in the cyst it is followed by cytoplasmic division and thus many amoeba are formed. और ये जो डिवीजन होता है ये साइटोप्लाज्म में होता है, इसकी वजह से नंबर ऑफ अमीबाज आर फॉर्म द रिमेन इंसिस्ट टिल देयर एडवर्स कंडीशन. और ये डिवीजन तब तक चालू होता है जब तक जो सिस्ट है वो अनसिस्ट नहीं हो जाता है. ठीक है, अपनी सर्कुलर शेप से असर्कुलर नहीं ई सर्कुलर नहीं हो जाता है. सिस्ट ब्रेक्स ओपन ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन. और जब भी फेवरेबल कंडीशन होती है, इन्वायरमेंट की कंडीशन ठीक हो जाती है, सिस्ट ब्रेक हो जाता है. एंड मेनी एमोबुलिया आर रिलीज्ड. और मेनी एमोबुलिया क्या हो जाते हैं? रिलीज हो जाते हैं. और इस तरह से मल्टीपल फिजन होता है. उसके बाद देखिए यहाँ पे हमको बताया गया है ये पेरेंट अमीबा है. पेरेंट अमीबा ने क्या किया? एडवर्स कंडीशन की वजह से सर्कुलर शेप ले लिया, सिस्ट फॉर्म किया. सिस्ट फॉर्म होने के बाद डिवीजन ऑफ न्यूक्लिया एंड साइटोप्लाज्म में नंबर ऑफ मल्टीपल टाइम्स क्या हुआ? डिवीजन हुआ. और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आ गई और इनफेवरेबल कंडीशन चले गई तो फिर ये सिस्ट क्या हो गया? ब्रेक डाउन हो गया. नंबर ऑफ एमेबोलिया आर रिलीज्ड फ्रॉम दिस अमीबा फ्रॉम पेरेंट अमीबा. सेम एज लाइक थर्ड वन मेथड इज द बडिंग. सो सी हियर बडिंग इज दिस प्रोसेस. दिस इज द पेरेंट्स ईस्ट सेल एंड इट इज अ बल्ज फॉर्म. फ्रॉम हियर न्यू बड इज फॉर्म्ड एंड हियर number of daughter yeasts are formed. So see here, bring the activity dry yeast powder from a market. क्या करिए? आपके एक एक्टिविटी दी गई है कि जो ईस्ट का पाउडर है वो लेके आइए मार्केट से. टेक 50 ml ल्यूकवार्म वाटर इन अ कोनिकल फ्लास्क. और थोड़ा हल्का सा गर्म पानी कोनिकल फ्लास्क में ले ले. एड 5 ग्राम ऑफ एक्टिव ड्राई ईस्ट पाउडर एंड 10 ग्राम टेबल शुगर टू दैट वाटर एंड मिक्स वेल मिक्सचर. अब उस कोनिकल फ्लास्क में आपको क्या करना है कि आपने जो कोनिकल फ्लास्क लिया है उसके अंदर आपको ड्राई का पाउडर लेना है और 5 ग्राम और एक्टिव ड्राई पाउडर और 10 ग्राम टेबल शुगर लेके मिक्स करना है. कीप द फ्लास्क इन अ वार्म प्लेस आफ्टर एन आवर. 1 घंटा इसको एक वार्म जगह पे रखेंगे आप. दैट मिक्सचर ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड. और फिर उसके बाद एक क्लीन स्लाइड पे उस मिक्सचर को हमें क्या करना है? ऑब्जर्व करना है. पुट अ कवर ग्लास ऑन दैट ड्रॉप. ऑब्जर्व इट अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप. तो जो मिक्सचर हमने बनाया था उसका एक ड्रॉप लेना है. उस ड्रॉप पे हमको क्या करना है? कवर स्लिप रखना है. और इसको किस में देखेंगे हम? फिर से माइक्रोस्कोप में. नाउ सी हाउ वी कैन ऑब्जर्व एंड व्हाट इज वी ऑब्जर्व. तो यू विल सी द ईस्ट सेल परफॉर्मिंग अ बडिंग प्रोसेस परफॉर्म करेंगे. कौन परफॉर्म करेंगे? performing yeast cells. So this is the process of budding. Consider that it is our slide. Consider that it is our slide. Okay, and this is the process that we observe. This is a parent is cell, this is a bulb is formed, and from here new bud is formed and number of daughter yeasts are formed. So small bud coming out of many parent cell. तो many parent cell से क्या होते हैं? एक small buds, new buds form होते हैं. Now asexual reproduction occur by budding in yeast, a unicellular fungus. इस cell produce 2 daughter nuclei by mitotic division. इस cell क्या करता है? 2 daughter nuclei फॉर्म करता है. किससे? माइटोटिक डिवीजन से. किससे? माइटोटिक डिवीजन से. दैट मीन्स अ पेरेंट सेल.
प्रोड्यूस अ न्यू डॉटर न्यूक्लियस सो एज टू रिप्रोड्यूस बाय बटिंग। तो फिर इससे क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। दिस इज ईस्ट सेल इज कॉल्ड पेरेंट सेल, और ईस्ट सेल को हम क्या कहेंगे, पेरेंट ईस्ट सेल, पेरेंट ईस्ट सेल। अ स्मॉल बल्ज अपीयर्स ऑन द सरफेस ऑफ अ पेरेंट सेल, और पेरेंट सेल के अपर साइड में क्या होता है, एक स्मॉल सा बल्ज फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, बल्ज फॉर्म होता है। दिस बल्ज इज एक्चुअली अ बर्ड, और ये बल्ज एक्चुअल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक न्यू बर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। वन ऑफ द टू डॉटर न्यूक्लिया एंटर दिस बर्ड, वन ऑफ द टू डॉटर न्यूक्लिया एंटर्स दिस बर्ड। तो इसमें के जो टू न्यूक्लिया होते हैं उसमें से एक न्यूक्लिया कहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, न्यू बर्ड में ट्रांसफर हो जाता है। सो आफ्टर सफिशिएंट ग्रोथ, और अच्छी सी ग्रोथ पाने के बाद बर्ड सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट सेल। ये जो बर्ड है ये पेरेंट सेल से सेपरेट हो जाता है। ये हो गया हमारा पेरेंट सेल और ये हो गया ग्रोइंग सेल। सो पेरेंट सेल स्टार्ट टू लाइव इंडिपेंडेंटली, और उसके बाद जो न्यू सेल है वो क्या करता है, इंडिपेंडेंटली रहना शुरू कर देता है, विच इज कॉल्ड एज द डॉटर सेल। और फिर इस तरह से ये पेरेंट सेल बन जाएगा, इससे ये डॉटर सेल, फिर ये पेरेंट सेल बन जाएगा, इससे ये डॉटर सेल, एंड दिस प्रोसेस विल बी अ कंटिन्यू। सो हियर अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है हमारा, उसके अंदर हमने बाइनरी फिजन देखा है, उसके बाद हमने देखा है मल्टीपल फिजन, उसके बाद देखा है हमने बडिंग का प्रोसेस, और इसके बाद हम देखेंगे फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड द प्रोसेस ऑफ बडिंग एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, बने रहिए मेरे चैनल एकेडमी ऑफ साइंस शेयर के साथ, एंड जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।